बट डोंट थिंक दैट कैट इज योर ओनली ऑप्शन। बहुत इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए वो राइट डिसीजंस लेने के लिए। आई डिड नॉट नो व्हाट टू स्पीक इन दैट एक्सटेम्पोर। दे गेव मी 60 seconds and I was blank. That was the moment that changed everything for me. Hi everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. I feel very happy and proud of myself, if I may say so, to tell you that in about 2 weeks I am going to begin my MBA journey at Ford School of Management. About a year ago when I started preparing for the entrances and I made my mind to take up this career path, मेरे दिमाग में सिर्फ एक target college था and that was Ford School of Management. This video is going to be completely dedicated to that aspect of my life. A year ago when I made up my mind to do MBA, I was so confused because I had so many doubts about it. I'm not talking about whether I should go for MBA or not, or like my career history, because that is a different topic and that we can pick it up maybe in some other video. But once you decide that you want to go for MBA, there is a hell lot of decision making that comes with it and I did not know it back then. बहुत इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए वो राइट डिसीजंस लेने के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला था। आई डिड फाइंड हेल्प ऑन यूट्यूब, बट मुझे कोई मेरे जैसा नहीं मिला था जिसको देखकर मुझे हो पाए कि हाँ ये कर सकती है या ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। यूट्यूब पर जिन जिन से मैंने हेल्प ली थी दे वर ऑल आइदर कम्प्लीटली इनटू एकेडमिक्स, उनका चैनल ही एजुकेशन से रिलेटेड था, और they were very experienced in their field, they were like seniors. But एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट या फिर एक फ्रेंड टू फ्रेंड, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो ऐसी कॉन्वर्सेशन में चाहिए होता है, एक रियलिटी चेक के साथ, वो मुझे कहीं नहीं मिला था. एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू डू इन टूडेज वीडियो. आई पुट अप अ पोल on Instagram asking you guys if you have any doubt related to MBA, like not what happens after MBA or during MBA because I am yet to experience that, but how to get into a college, how to prepare for it, एंड उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो. एंड सरप्राइजिंगली आई डिड गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मुझे लगा नहीं था कि आएंगे क्योंकि मेरी ऑडियंस ब्यूटी, लाइफस्टाइल, यही सब कंटेंट देखती है मेरा. बट देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू गाइज ट्रस्टेड मी एंड आस्क्ड मी दोज क्वेश्चंस. इफ यू वांट सम MBA ज्ञान, please keep on watching. But before that, if you are seeing this face for the very first time, I am Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Make sure to subscribe to my channel for more such videos. I'm sure I'll have a great time here. Hit that bell icon as well so that every time I upload a video, you get notified. And now without any further ado, let's get into the video. So let me tell you a little bit about myself. I am pursuing YouTube since the past 1.5 years. But I never wanted to do just YouTube. I wanted to and I needed to do something else along with it too. So at first I was searching for jobs after my graduation and I really did not understand what kind of job did I want. मन नहीं मान रहा था, ऐसा लग रहा था that it is not the right choice for me. When I researched more about higher education, like my friends also guided me through it, and I realized that MBA is the right decision for me. और just as a backup career कि YouTube नहीं हुआ तो MBA कर लेंगे, it kind of like aligns with my goals and it will take me one step forward towards the person that I dream of becoming someday. That is why I decided to go for MBA entrances with fingers crossed, because I was going to dedicate an entire year to the preparation and that is a lot, especially after graduation क्योंकि gap year आता है. The first question is, which entrance exam did you pass? MBA में there is not just one exam, there are many exams. And यहाँ पर ही आपकी decision making start हो जाती है, आपको कौन सा exam देना है. CAT is obviously the main exam which opens the doors to almost all the great MBA colleges. But don't think that CAT is your only option. There are n number of exams like जो आपको एक बहुत अच्छे reputed college में admission दिलवा सकते हैं. I gave around 5 exams. I went for CAT, NMAT, SNAP, XAT and IBSAT. I gave all of these, and CAT में honestly I did not score well. I got around 68 percentile, like approximately 70 percentile. That is not good enough to get you in a tier 1 or tier 2 college. But don't lose hope because after सामने example बैठी है, CAT में marks ना लाने के बावजूद भी I am sitting in my target college. My NMAT exam went well and NMAT is way easier than CAT also. But I did not want to move out of Delhi. ये मेरी condition थी कि मुझे Delhi का ही college चाहिए. That is another reason why Ford School of Management was my target college. IBSAT, IBS कॉलेज का अपना पर्सनल एग्जाम है. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था एंड आई केप्ट इट एज अ बैकअप कि अगर मेरा कहीं नहीं हुआ तो यहाँ मेरा इस कॉलेज का पर्टिकुलर एग्जाम देके आई थिंक यहाँ पर मैं मैनेज कर ही लूंगी. सो दैट इज वाई आई केप्ट इट एज अ बैकअप. बट दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम विच इज
almost equivalent to CAT, and I got into Ford School of Management through that. Somebody has asked me cut-off marks. There's no such thing as cut-off marks when it comes to MBA entrances. There's a percentile system when it comes to MBA, and that varies every year. However, every college has an approximate percentile कि अगर आपने इस एग्जाम में इतनी परसेंटाइल स्कोर कर ली तो आपको इसमें एडमिशन मिल ही जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई स्कोर्ड 80 परसेंटाइल इन दैट, सो द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज 80 to 85 परसेंटाइल कि अगर आपके इतने आ गए तो आपको 4 में मिल जाएगा. बट देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर टू दिस, दैट वैरीज एवरी ईयर. पासिंग परसेंटेज, अगेन एज आई जस्ट सेड, देयर इज नो पासिंग परसेंटेज. हर साल परसेंटाइल सिस्टम पर ही रिजल्ट आता है. अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके कैट या जैट में 80 परसेंटाइल से ऊपर आ गए तो आपको टियर 2 कॉलेजेस मिल जाएंगे. 90 परसेंटाइल से ऊपर आ गए तो यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शन. How did I get admission, or what is the admission procedure? So this is the first and foremost step is to fill the exam form. Of course, ये एग्जाम से 2-3 महीने पहले निकल जाते हैं. यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि आप कौन से एग्जाम्स भर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन आपके गोल्स क्या है, आपको बाहर से करनी है कि नहीं करनी, आपका बजट क्या है, क्योंकि हर कॉलेज की अपनी ऑब्वियसली फीस भी होती है. आप अपने ऑप्शंस एकदम लिमिटेड नहीं रख सकते कि मैं अपने टारगेट कॉलेज के अलावा कोई और एग्जाम भरूंगा ही नहीं. दैट कैन लीव यू इन सिचुएशंस कि आपके पास कुछ भी नहीं है. एंड एट द सेम टाइम आप अंधा पैसा भी नहीं लगा सकते फॉर्म्स भरने में, बिकॉज दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव. दिमाग लगाकर अपने बैकअप ऑप्शंस को सोचकर एंड अपने टारगेट कॉलेज को सोचकर यू हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जाम्स दैट यू हैव टू गो फॉर एंड व्हाट कॉलेजेस यू हैव टू अप्लाई टू. आपको एग्जाम फॉर्म अलग भरने होते हैं, एंड देन आपको हर कॉलेज में जिस कॉलेज में आप सोचते हो कि हाँ यहाँ मैं जा सकती हूँ, उनके फॉर्म्स आपको अलग भरने होते हैं. क्योंकि अगर आपने वो नहीं भरे तो आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा. दे विल नॉट कंसिडर यू फॉर एन इंटरव्यू अगर आपने उनके फॉर्म्स नहीं भरे तो. देन ऑब्वियसली यू गिव द एग्जाम्स. इफ यू फॉल इनटू दैट परसेंटाइल कैटेगरी, आपका रिजल्ट अगर उतना अच्छा आ गया, देन दे कॉल यू फॉर देयर पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस. नाउ ये हर कॉलेज में अलग सिस्टम होता है. पर्सनल इंटरव्यू तो आपका हर कॉलेज लेगा ही लेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज GD, देयर इज VAT इज रिटन असेसमेंट टेस्ट, एंड देयर इज ऑल्सो बिजनेस अवेयरनेस क्विज. सो या हर कॉलेज का ना अपना अलग सिस्टम होता है. आई गेव इंटरव्यूज एट 2 colleges, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. मुझे इन्हीं 2 कॉलेजेस में जाना था, एंड लकीली इन्हीं 2 कॉलेजेस में मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई. एंड 4 वॉज माई प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू LBS. LBS में पहले मेरा GD राउंड हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया, बट इंटरव्यू में ही उन्होंने पहले एक्सटेम्पोर लिया. दे गिव यू अ टॉपिक एंड यू हैव टू स्पीक ऑन इट ऑन द स्पॉट. दैट इज व्हाट एक्सटेम्पोर इज. वंस दैट इज ओवर, दे टुक माई पर्सनल इंटरव्यू. फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का मेरा सारा घर से हुआ था, लाइक इट वॉज एन ऑनलाइन सिस्टम, बट इट वॉज एज नर्व रेकिंग एज इट इज ऑफलाइन. पहले मेरा एक्सटेम्पोर हुआ था, उसके बाद दे टुक अ बिजनेस अवेयरनेस क्विज. Like they asked me 3 questions. It was an MCQ round and वो मेरे स्क्रीन पर questions थे, मुझे वो पढ़ के आंसर करना था. And then they took my personal interview. And I'll be really honest, LBS में मेरा GD बहुत अच्छा गया था, and then मेरा extempore भी अच्छा गया था. Personal interview was 90% okay. 10% I did get stuck at some places, but overall I ended up clearing that. They gave me the offer letter. I was selected, but I did not go for it because I got into 4. And 4 वाले में, to be honest, I did not know what to speak in that extempore. They gave me 60 seconds and I was blank because मेरा topic उन्होंने general awareness से दिया था and I did not know about it. I'm admitting it openly. I did not know about it. But I did not let that experience ruin the rest of my interview. Business awareness quiz में they asked me 3 questions. एंड थैंकफुली आई लाइक मैनेज दैट. मेरे को 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए थे. दे डोंट टेल यू कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं. सो 2 क्वेश्चंस तो मैंने बाद में चेक करे, मेरे आंसर्स ठीक थे. 3rd क्वेश्चन का आई डू नॉट रिमेंबर वो ठीक है कि गलत है, वो आज तक मिस्ट्री है. एंड देन माई पर्सनल इंटरव्यू वेंट ग्रेट, लिटरली ग्रेट. एक बार आपके ये सारे राउंड हो जाए, उसके बाद बस यू हैव टू सिट बैक, प्रे टू योर गॉड्स एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स. प्रभु बस इलेक्ट्रॉनिक संभालने में नारियल फोड़ना. इफ दे सिलेक्ट यू, दे सेंड यू द ऑफर लेटर, और इफ दे वेट लिस्ट यू, यू गेट अ पर्टिकुलर नंबर. इतने नंबर पे आपकी वेटिंग चल रही है. एंड इफ यू आर वेट लिस्टेड, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपको नहीं पता कि कितने सारे बच्चों ने कहाँ कहाँ अप्लाई कर रखा है, तो वो वेट लिस्ट हिलती रहती है. IIMs के रिजल्ट बहुत बाद में आते हैं. Tier 2 कॉलेजेस में कई लोगों ने जैसे सीट रोक ली, बट देन उनका IIM में सिलेक्शन हो गया, तो वो यहाँ से छोड़कर वहाँ जाएंगे तो वेट लिस्ट बढ़ेगी. ऐसे हर कॉलेज में वेट लिस्ट मूव होती रहती है. इवन आफ्टर द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, यू हैव 2 months ऑफ दैट वेट लिस्ट प्रोसीजर. 4 में आई वॉज वेट लिस्टेड एट फर्स्ट, बट थैंकफुली सेकेंड वेट लिस्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो चुका था. आई डिड गेट एडमिशन, तो मुझे वो एंग्जाइटी फेज ज़्यादा देर के लिए गो थ्रू नहीं करना पड़ा.
मुझे अपने इंटरव्यू और जीडी के बारे में और बात करनी है, बट स्टिक टू द वीडियो क्योंकि वो मैं लास्ट में बताने वाली हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, somebody has asked me what is the college fees. Now हर कॉलेज की डिपेंडिंग अपॉन द लेवल अलग फीस होती है, बट माइंड यू MBA इज एक्सपेंसिव. इट इज नॉट लाइक DU के कॉलेजेस की तरह की 30-40 हज़ार में आपकी पूरी ग्रेजुएशन हो जाएगी. कैन स्टार्ट फ्रॉम 9 to 10 lakhs and it can go as high as 25 to 30 lakhs. एंड 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पर मैंने लिया वहाँ पर फीस है 17 lakhs. तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपके फीस के अकॉर्डिंग आपको उतना ROI मिलेगा कि नहीं, आपको वो कॉलेज क्या एक्सपोजर देता है, उस कॉलेज की क्या रैंकिंग है, उसके हिसाब से यू कैन गो फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज MBA एंट्रेंसेस की क्लासेस कहाँ से ली थी मैंने. सो आई टुक माई क्लासेस फ्रॉम टाइम्स. टाइम्स तो सब नहीं सुना हुआ है, बचपन से हमेशा टीवी में ऐड देखिए. आई एम XYZ, आई एम फ्रॉम टाइम. I'm Rajiv and I'm from Time. I'm Shipra and I'm from Time. Kashmira from Time as well. Joshua from Time. 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 जब वो ऐड देखते थे तब मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मैं खुद भी जा रही होंगी एक टाइम पर. तब तो मुझे पता भी नहीं था वो किस चीज़ की ऐड होती थी. मैं दिल्ली से हूँ, so मैंने झंडे वाला ब्रांच चूज करी थी, दैट इज इन CP. And there are many branches of Time, but that is the best known for it. Experience with Time was good, but not completely up to the mark. I'll tell you why. The quality of the faculty was amazing. The material that they provide. पढ़ाई वहाँ पर बहुत अच्छे से हुई थी मेरी. बट मेरी क्लासेस चली थी लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर अगस्त या मिड सितंबर तक. उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो गया, देन यू आर काइंड ऑफ ऑन योर ओन. मतलब दे डू होल्ड वर्कशॉप्स एंड ऑल, दे डू कॉल यू फॉर सम प्रैक्टिस. कोई रिविजन सेशंस वगैरह नहीं हुए थे. वर्कशॉप्स के लिए वो बुलाते थे, बट जा रहे हो नहीं जा रहे आपके ऊपर छोड़ देते हैं वो कम्प्लीटली. आफ्टर द पढ़ाई पार्ट इज ओवर, यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट व्हेन यू हैव टू सिलेक्ट कौन सा एग्जाम भरूँ, कौन सा एग्जाम आपका कैसा गया था, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि मैं कौन से कॉलेज का फॉर्म भरूँ. बहुत कुछ होता है जिसपे आपको गाइडेंस चाहिए होता है. GDPI की भी प्रिपरेशन होती है. दे प्रॉमिस यू कि वो आपको जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे. बट मुझे क्लासेस के बाद वो सपोर्ट नहीं मिला जो मैंने एक्सपेक्ट किया. आई डिड यूज टू कॉल देम, बट कभी रिस्पॉन्स आता था कभी नहीं आता था. वी गेव अप कि उनसे हेल्प नहीं मिलेगी, हमने खुद ही मैनेज किया है. वन ऑफ द रीजंस व्हाई टाइम इंस्टीट्यूट वाज नॉट एबल टू बी एज सपोर्टिव एज इट शुड बी, बिकॉज उनके पास इतने सारे बच्चे हैं तो वो पर्सनली हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकते. तो एक ये रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाने का एक ये कॉन भी हो जाता है. सो चूज वाइजली. एंड आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये इंस्टीट्यूट जाओ वो इंस्टीट्यूट जाओ, चूज वाइजली. बट ये चीज़ें माइंड में रख के जाना, ये चीज़ें पहले पूछ लेना, कंफर्म कर लेना कि आपको पढ़ाई के बाद वाला सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. How do you plan on managing YouTube along with MBA? This is nerve wracking. मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है सोचकर कि मैं कैसे मैनेज करूँगी दोनों चीज़ें साथ में, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल प्रायोरिटी फॉर मी. I cannot choose one for the other. But honestly मुझे एंट्रेंसेस में घुसने से पहले भी लग रहा था कि भाई मैं पढ़ाई के साथ YouTube कैसे करूँगी, बट I somehow managed it. तो अगर मैंने तब मैनेज कर लिया था, अब चीज़ें और बढ़ जाएंगी और बदल जाएंगी, बट स्टिल आई थिंक आई एम गोइंग टू विंग इट, क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट यूट्यूब. एंड जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट होते हो तो आप जैसे ना जैसे टाइम निकाल ही लेते हो. एंड आई थिंक मैं कर लूँगी मैनेज. So someone said that congratulations, though it's a big win. So thank you so much for that. I'm really sorry for the sudden background change. मैं जिस रूम में शूट कर रही थी वो रूम थोड़ा ऑक्यूपाई हो गया, तो इसलिए मुझे रूम चेंज करना पड़ा. But I did not want to break the flow of this video. That is why I'm continuing shooting. And for today's video, I don't think the background matters. It's the content that matters. I was cut off when I was answering the question कि MBA open से ज़्यादा better है या फिर regular से, and I'm going to just restart that question again. See, it is kind of obvious that MBA from regular is way better than MBA from an open university. The exposure is different, the ROI is different, the standard is different, but at the same time, everybody's circumstances are also very different. If you are someone who can devote 2 full years after graduation or after your job, अगर आप अभी job कर रहे हो तो, if you already have a good job and you cannot quit it because you have to earn money. We are all grown-ups with some responsibilities on our shoulders. सबकी circumstances अलग होते हैं. So not everyone can afford to quit their job full time. So those kind of people doing MBA from an open university is also a good option, because आप आपकी job आपकी already अच्छी खासी भी चल रही है,
तो आपको उसके साथ साथ ओपन से MBA करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप अपना पैकेज भी बढ़वा सकते हो ऑब्वियसली। सो फ्रॉम दैट पॉइंट MBA फ्रॉम एन ओपन यूनिवर्सिटी इज गुड, बट अगर पैकेज बढ़ाना आपका सोल रीजन नहीं है, आपको बिजनेस की नॉलेज एक्चुअली में वो बिजनेस का एक्सपोजर चाहिए, कल को अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है, एंड अगेन ऑल द थिंग्स दैट आई सेड अबाउट टाइम, अफोर्डेबिलिटी एंड ऑल, वो सब मैटर नहीं करता, देन MBA फ्रॉम रेगुलर इज बेटर। सो आप अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग यू कैन गेज। नेक्स्ट इज हाउ इज माई इंटरव्यू और माई GD एक्सपीरियंस। ये काफी लंबा चल सकता है इसका आंसर। हम जब एंट्रेंस की तैयारी में घुसते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चल रही होती है कि पढ़ाई करनी, पेपर देना, पढ़ाई करनी, पेपर देना, पढ़ाई करनी, पेपर देना। इंटरव्यू हमेशा होता है कि देखी जाएगी कि पहले पेपर तो निकाले, इंटरव्यू की कॉल लायक तो बने, उसके बाद देखी जाएगी इंटरव्यूज की। But this is a very wrong approach and this can make all your efforts go in vain. एग्जाम का रिजल्ट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, बट दैट इज नॉट एवरीथिंग। हर एक क्राइटेरिया की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, सबके अपने अपने अलग अलग स्कोर्स होते हैं। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके एंट्रेंस का स्कोर, आपके 10th 12th के मार्क्स तक देखे जाते हैं, आपका लाइक ग्रेजुएशन में आपने कैसा परफॉर्म करा, आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपका GD कैसा गया, अगर एक्सटेम्पोर है तो वो कैसा गया, सब कुछ मैटर करता है। एंड ओवरऑल हर एक चीज के अपने अलग मार्क्स होते हैं, एंड उसके बाद इफ यू क्लियर दैट, आप सब कुछ टिक 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 एक एक करके क्लियर करते गए एंड द कॉलेज फाइंड्स यू फिट, देन यू गेट द एडमिशन। दैट इज व्हाई इंटरव्यू एंड GD की तैयारी, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट गुड एट स्पोकन इंग्लिश, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, बिकॉज यहाँ पर नहीं बोल सकते कि हिंदी मातृभाषा है तो चलेगा, आपको एक वेल स्पोकन पर्सन होना पड़ेगा। इसलिए मेक श्योर टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स ऑलरेडी। You don't have to talk like Shashi Tharoor, just be good enough to be able to convey your mind to the interviewer properly. ऑलमोस्ट हर कॉलेज में GD होती है एंड GD इज लाइक अ होल अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। GD टैकल करना सबके बस की बात नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब बोलना है, आपको कितना बोलना है, आपको क्या बोलना है, आप कैसे बोल रहे हो, सब मैटर करता है। ये सब कौन सिखाएगा तो आपका इंस्टीट्यूट इस चीज का ध्यान रखेगा, बट वो आपका ध्यान रखेगा आपके एग्जाम्स के बाद। होपफुली रखे, मेरे टाइम पर ऐसा बहुत कम हुआ था, बट वो आपको एग्जाम्स के बाद। एग्जाम्स के साथ साथ इफ यू वांट टू प्रिपेयर, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो इस चीज के लिए। मेरे लिए GD वॉज नॉट नर्व रेकिंग बिकॉज आई डिड डू अ कोर्स वंस फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल एंड वहां पर मेरी बहुत सारी GD की प्रैक्टिस हुई थी। आई जस्ट डिड दैट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एज अ पर्सन, ताकि मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाए, बट आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम कि वो चीज मेरे यहाँ पर काम आएगी। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट माई मदर लेट मी डू दैट कोर्स बिकॉज दैट डिड मेक मी अ वेल स्पोकन पर्सन। बिफोर दैट आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। सबका इंटरव्यू अलग होता है, सबकी लाइफ पर बेस्ड होता है। आप इंजीनियर हो तो आपको एक अलग तरह का इंटरव्यू होगा, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो अलग तरह का इंटरव्यू होगा। मेरा तो बहुत यूनिक इंटरव्यू था, मेरे जैसा इंटरव्यू किसी का नहीं होगा एंड आई टेल यू व्हाई। इसमें ऑब्वियसली दे आस्क यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल, वो सब तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एंड वो आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग आंसर करना है। बट उसके अलावा दे डू आस्क यू सब्जेक्ट नॉलेज, दे डू आस्क यू जनरल नॉलेज एंड ऑल दैट स्टफ। कुछ भी कहीं से भी उठाकर पूछ सकते हैं वो, एंड समटाइम्स दे आस्क यू इम्पॉसिबल क्वेश्चंस जस्ट टू चेक योर कॉन्फिडेंस। मेरे केस में क्या हुआ था, सिंस आई एम डूइंग MBA फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस देन मोस्ट पीपल। ज्यादातर लोग MBA को एम्प्लॉयमेंट टिकट की तरह देखते हैं कि MBA कर ले तो अच्छी खासी जॉब लग जाएगी, बट मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब करने नहीं है, बट मेरा माइंडसेट थोड़ा, मेरी अप्रोच थोड़ी अलग थी MBA को लेके। मेरी लाइफ को लेके अप्रोच थोड़ी अलग है इन जनरल। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैं हमेशा अपना यूट्यूब से एंड करती थी दैट आई डू हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल, एंड दैट इंट्रीग देम सो मच कि वो मेरे यूट्यूब से रिलेटेड मुझसे काफी कुछ पूछते थे। बहुत सारे, मतलब वो क्यूरियस होके भी पूछते थे, वो मुझे जज करने के लिए भी बहुत कुछ पूछते थे, वो यूट्यूब से रिलेटेड नेगेटिव चीजें भी बोलते थे जस्ट टू चेक कि मैं टैकल कैसे करूंगी, एंड पॉजिटिव चीजें भी होती थी। डिड हैव अ गैप ऑफ 2 years बिकॉज आई वाज परस्यूइंग CA एज वेल, तो वो मुझसे ये भी टैकल करवाते थे आपने क्विट क्यों करा। मेरा वो CA छोड़ने का डिसीजन भी बहुत वेल थॉट था, मेरा MBA में आने का डिसीजन भी बहुत वेल थॉट था, एंड इट काइंड ऑफ अलाइंस विद व्हाट आई वांट टू डू आफ्टर यूट्यूब और अलोंग विद यूट्यूब। मैंने उनको अच्छे से अपना विजन एक्सप्लेन किया एंड दे अंडरस्टूड दैट। मेरा 90% ऑफ द इंटरव्यू ये वाली लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करता था। थोड़ा बहुत मुझसे एकेडमिक्स का भी पूछते थे, अकाउंट्स के क्वेश्चंस एंड ऑल, वो सब मैं इतना अच्छे से टैकल नहीं कर पाती थी, बट दैट यूज्ड टू बी 10% ऑफ द एंटायर इंटरव्यू। सो 90% मेरा अच्छा ही जाता था। ये मेरा हर इंटरव्यू में पैटर्न ही बन गया था। मैंने 3 कॉलेजेस में दिए थे एंड तीनों जगह मैंने यही पैटर्न ऑब्जर्व किया, एंड आई थिंक मेरे इंटरव्यू के बाद ये कंक्लूजन उनके माइंड में बन जाती
दैट शी इज अ वेरी क्रिएटिव, एंथुजियास्टिक एंड पैशनेट पर्सन, जिसका थोड़ा सा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट कम है, बट शी हैज दैट विजन एंड शी हैज दैट गोल इन अ माइंड, विच इज व्हाई आई गॉट इनटू ऑल थ्री ऑफ देम. ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा से जाता था, नेगेटिव चीजें भी हुई है मेरे इंटरव्यूज में. 4 में मैंने आपको बताया था कि मेरा एक्सटेम्पोर बिल्कुल ब्लैंक चला गया था. LBS के इंटरव्यू में दे डिड आस्क मी सम जीके क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूट्यूब जो मुझे नहीं आते थे, एंड दैट वाज मेरे पार्ट पे कमी की. यूट्यूब की जीके तो मुझे पता होनी चाहिए थी. एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था यूट्यूब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करता है, एंड आई डिड नॉट नो दैट, सो दैट वाज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग. एंड उन्होंने मुझसे कुछ एकेडमिक का भी पूछा था जो उस टाइम पर मेरे को दिमाग से निकल गई. सब मेरे दिमाग से सारी अकाउंट सारी कॉमर्स निकल गई, तो मैं ब्लैंक हो गई थी. तो ये चीजें भी हुई है मेरे साथ इंटरव्यू में. इन सब नेगेटिव पॉइंट्स के बावजूद भी दे डिड नॉट रिजेक्ट मी, दे डिड सिलेक्ट मी, बिकॉज आपको ओवरऑल जज करते हैं. सिर्फ आपके एग्जाम के बेसिस पे नहीं होता, सिर्फ आपके इंटरव्यू के बेसिस पे नहीं होता, सिर्फ आपके GD के बेसिस पे नहीं होता, आपकी ओवरऑल इमेज के बेसिस पे होता है. तो आपको हर चीज पे काम करना है, हर चीज को प्रायोरिटी देनी है. ये तो मेरे बारे में हो गया, बट आप अपने पॉइंट से सोचो. अगर आपको गैप ईयर है तो आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए. अगर आप जॉब से स्विच कर रहे हो तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आप क्यों स्विच कर रहे हो, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या है. मेक श्योर कि आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी ऐसे रखो जो आप इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ. अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो ट्रेडिंग से रिलेटेड, बट मेक श्योर कि आप जो भी बोलो आपको उसके बारे में XYZ लेफ्ट राइट एंड सेंटर सारी नॉलेज हो, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनको सब पता होता है. बहुत लंबा आंसर हो गया इसका. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि MBA अब्रॉड से ज्यादा बेटर है या फिर इंडिया से करना ज्यादा बेटर है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स. अगर आपको सेटल बाहर होना है देन आई वुड सजेस्ट कि आप बाहर से MBA करो. बट अगर आपको बाहर सेटल होने का प्लान नहीं है देन इंडिया से भी बहुत अच्छी खासी MBA हो जाती है. अकॉर्डिंग टू मी इंडिया के बाहर एक मिड लेवल रैंकिंग की यूनिवर्सिटी चूज करने से अच्छा आप इंडिया में एक अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी चूज कर लो. बाहर ROI ज्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा होती है, एंड अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. आपके अल्टीमेट गोल्स के अल्टीमेट विजन क्या है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. तो ये सब माइंड में रख के आपको अपने लिए गुड डिसीजन लेना पड़ेगा. आपको कोई बता नहीं सकता ये. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे ज्यादा नॉलेज है भी नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैं इंडिया तो क्या मैं दिल्ली छोड़ के जाना ही नहीं चाहती. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भाई तू घर से बाहर निकल. आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट टू डू इट फ्रॉम माय होम ओनली. एक तो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो मुझसे घर के बाहर आई डोंट थिंक अभी सर्वाइव हो पाएगा. एज लॉन्ग एज आई कैन स्टे विद माई पेरेंट्स आई वॉन्ट टू. प्लस एट द सेम टाइम देयर इज अनदर बिग फैक्टर, YouTube. Yes, YouTube is that important for me कि मैं अपना डिसीजन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हूँ. आप बाहर जाते हो तो आपको अपने आप को भी मैनेज करना होता है एंड आपको कॉलेज के काम भी मैनेज करने होते हैं. इसके साथ साथ मेरे पास YouTube भी है मैनेज करने को, एंड बाहर जाकर मैं खुद को भी मैनेज करूँ, कॉलेज के भी काम करूँ, YouTube भी करूँ, नहीं हो पाएगा. मुझे स्पेस ही नहीं मिलेगी बाहर ऐसे सिट डाउन शूट करने के लिए. आप फ्लैटमेट्स के साथ रहोगे, आप PG में रहोगे या फिर आप हॉस्टल में रहोगे. प्रैक्टिकली अगर मैं बाहर चली गई तो YouTube होता हुआ नहीं नजर आता. हो सकता है मुझे 4 जाने के लिए PG लेना पड़ जाए. कई बाद में बोलोगी ये तो कहती बाहर नहीं जाना, अरे PG में चली गई. हो सकता है मुझे जरूरत पड़ जाए, बट एटलीस्ट आई कैन कम बैक वीकेंड्स पे. एंड किसी भी टाइम को छुट्टी आ गई तो मैं उसी टाइम घर आ सकती हूँ. बस मेट्रो करके कैब करके आना है, फ्लाइट पकड़ के नहीं आना. मैं कभी भी घर वापस आ सकती हूँ. सो question, it is about my journey or the whole process from giving exams to getting selected. Oh my god, the entire 1 year was a roller coaster ride. I will be 100% transparent with you. I entered the institute with zero confidence in myself. मेरी ऐसी स्टेज आ चुकी थी कि मैं अपनी अकेडमिक एबिलिटीज पे बिल्कुल ट्रस्ट करना बंद कर दिया था मैंने. आई डोंट वांट टू गो इनटू व्हाई दैट फेज ऑफ मी हैपेंड, बट अभी के लिए इतना बहुत है कि मेरे को अपने आप से भरोसा उठ गया था. Thankfully, I had such people around me, my friends, who kicked me कि हाँ तो ये कर सकती है. उन्होंने वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर वापस डाला. उनके कॉन्फिडेंस से एंड इस विजन से कि हाँ ये अगर मैं कर लूंगी तो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ ये अलाइन करती है. सिर्फ इन 2 चीजों की वजह से मैं अपने मन को कन्विंस कर पाई इसमें घुसने के लिए. द एंटायर 1 year it was not at all easy for me because I'm not the brightest student. तो मुझे पढ़ाई के टर्म्स में मुश्किल होती थी एंड एट द सेम टाइम मैं YouTube भी कर रही थी. दूर से नहीं पता लगता बट YouTube डज टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड योर एनर्जी. एंड एट द सेम टाइम आई डिड हैव अ सोशल लाइफ एज वेल, क्योंकि उससे पहले का 1 साल मैंने बिल्कुल घर में अकेले ओवरथिंक करते हुए बहुत डिप्रेस निकाला था मैंने पिछले 1 साल. सो दैट 1 year आई लिव्ड माई लाइफ फुल्ली एज वेल. एक सोशल लाइफ भी थी मेरी, सब कुछ साथ में जब मेरा चल रहा था. बार बार मेरे माइंड में एक आवाज ये रहती थी कि यार नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा. बट
Obviously giving up was not an option. भगवान पे छोड़ के I kept on doing. YouTube का एक भी अपलोड नहीं मिस हुआ मेरा. बस जब मेरा एग्जाम सीजन आई रिमेम्बर नवंबर में कैट होता तो मैंने छोड़ दिया था नवंबर में अपलोड करना. मेरा इंस्टाग्राम इवेंट पे जो मैं गई थी दैट वाज द लास्ट व्लॉग दैट आई पोस्टेड. उस टाइम मेरा 1.5 महीने के लिए यूट्यूब बंद हुआ था. अदर देन दैट 2 वीडियोज एवरी वीक बैक टू बैक डिड गो लाइव. आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद यूट्यूब एंड मैं करती कैसे, मेरी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती थी, 2 घंटे की क्लास होती थी. उसके लिए मैं 1 घंटा आती थी, 1 घंटा जाती थी, फिर घर आके 2 घंटे सो जाती थी. एंड देन उसके बाद सो के उठ के कभी क्लास का पढ़ा, कभी एडिटिंग करा, कभी दोनों किया. मोस्टली मेरा टाइम एडिटिंग में जाता था. सैटरडे यूज टू बी माई फिल्मिंग डे. सैटरडे को शूट की हुई वीडियो मेरी संडे को शाम तक अपलोड होती थी, तो सैटरडे रात से लेकर संडे शाम तक उस वीडियो की एडिट में ही लगी रहती थी. फिर संडे शाम को थोड़ा सा टाइम मिलता था रिलैक्स करने का आफ्टर द अपलोड. उसमें से एक वीडियो मेरी वीक में साथ साथ जब जब मुझे टाइम मिले तब तक मैं एडिट करके वो अपलोड करती थी. तो ऐसे चलता था मेरा. एवरी सैटरडे संडे मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर घूम रहे होते थे, सबकी स्नैप्स आ रही होती थी. कोई मुझसे पूछता था तो मेरे को बोलना पड़ता था नहीं मेरा शूट डे है, मेरा एडिट डे है, मैं नहीं आ पाऊंगी. एंड टाइम वाले फ्रेंड्स से मिलते थे, वो पूछते थे वीकेंड पे तुमने कितना पढ़ा, क्या कवर अप किया. एंड क्या बोलते थे यार मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं वीकेंड पे, मैं तो अपने यूट्यूब पे काम कर रही थी. सिलेबस जब मेरा क्लास में खत्म हो गया अक्टूबर सितंबर में, तब मैंने मॉक टेस्ट पे फोकस किया ज्यादा. एंड ये मेरी आपके लिए टिप है अगर आप MBA के एंट्रेंसेस देने वाले हो, प्लीज फोकस ऑन टेस्ट मोर देन स्टडिंग चैप्टर वाइज. क्योंकि आपको आप चाहे चैप्टर वाइज भी कर रहे हो तो आपका इंस्टीट्यूट आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करेगा. आपको टेस्ट के फॉर्म में ही प्रैक्टिस करने, क्योंकि पेपर में आपका वो एकेडमिकली कितना दिमाग चलता है वो कम चेक करते हैं. आपकी डिसीजन मेकिंग, आप कितने क्विक हो, ये ज्यादा चेक किया जाता है कि आप चूज करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन में कितनी देर स्पेंड करनी है. उस सब के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए. एंड ये सब आपको टेस्ट के थ्रू ही आएगी. ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस वंस. बेसिक्स वगैरह सब समझने के लिए हायर लेवल की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, बट उसके बाद आपको टेस्ट पर फोकस करना है. एंड दिस इज व्हाट आई डिड. मैंने लास्ट में सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे एंड ऑनेस्टली मेरे मॉक टेस्ट में भी मार्क्स नहीं आते थे. मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों कर रही हूँ भाई, मेरे नंबर तो आने रहे, मैं घर पर शो नहीं करती थी. बट उस टाइम पे आई वॉज नॉट स्कोरिंग वेल इन मॉक्स एज वेल. तो एक रियलिटी चेक भी पता लगता था कि आपको क्या क्या इम्प्रूव करना है. तो कैट में अच्छा रिजल्ट मेरा जब नहीं आया तो मैंने अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली कि चलो ठीक है अब मुझे एक मीडियोकर कॉलेज में ही लेना पड़ेगा. अच्छा रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, बट मैं टाइम वेस्ट करने को नहीं था. तो मैंने न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया था. मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पर दिसंबर एंड में, मेरा वो क्लियर हो गया था. इट्स नॉट अ बैड कॉलेज, इट्स अ गुड कॉलेज. बहुत अच्छी कैटेगरी में नहीं आता. उसके बाद तो मेरे साथ भगवान जी ने चमत्कारी कर दिया. 8 जनवरी वॉज द डेट जब मेरा जैट का पेपर था. एंड NDIM में तब तक एडमिशन ले चुकी थी, तो मुझे लगा था मेरा फ्यूचर डिसाइडेड है, NDIM जाना है. बट जैट का फॉर्म भर रखा था तो मैं पेपर दे आई. एंड पेपर देने के बाद बस मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया. अब मेरा फोकस बस मेरी भाई की शादी पे है. मेरे को शादी की तैयारियां करनी है. मेरा पेपर सब निपट गए हैं. मैं शादी की शॉपिंग पे जाती थी, व्लॉग्स उसके बनते थे. अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो, प्लेलिस्ट में सारे व्लॉग्स हैं अभी. एंड देन जनवरी एंड में लाइक लिटरली मैं मार्केट में ही थी, मैं शादी की शॉपिंग ही कर रही थी. मुझे मेल आई कि जैट का रिजल्ट आ चुका है. वो सो केयरफ्री अबाउट इट कि ठीक है घर जाके देख लेंगे, क्योंकि मैं अपनी फेट एक्सेप्ट कर चुकी थी. तो मुझे था कि कैट पे भी नहीं आया, इसमें क्या ही आएगा. दैट में ना एक जीके का सेक्शन भी होता है अदर देन द मेन सब्जेक्ट्स. तो रिजल्ट में ना ऐसे था कि पहले मैथ्स के मार्क्स थे, फिर इंग्लिश के मार्क्स थे, फिर डिसीजन मेकिंग के मार्क्स थे, उसके बाद टोटल था, उसके बाद जीके के मार्क्स थे. ऐसे था. तो मैंने ना सीधा लास्ट कॉलम पे मेरी नजर गई. विदाउट रीडिंग द हेडिंग्स मैंने अपने जीके के मार्क्स पढ़ लिए. 60 या 70% आई, ऐसे कुछ था इंडिविजुअली सिर्फ जीके में. एंड आई एक्सेप्टेड माई फेट कि हाँ ये इतने ही तो आने थे. बट उसके बाद मैंने फिर इंडिविजुअल मार्क्स देखे थे. आई वाज लाइक इसमें भी 80, इसमें भी 80, तो ये मेरे इतने कम क्यों है टोटल. देन आई रेड द टोटल वाला कॉलम एंड उसमें 80% आई लिखी हुई थी, 80 पॉइंट समथिंग. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, is this for real? That was the moment that changed everything for me. बहुत लोगों के लिए 80% आइल इज नॉट अ गुड स्कोर, जो 95, 99 वाला दिमाग रखते हैं. सबके अपने गोल्स एस्पिरेशंस अलग होती है. मेरे लिए दिल्ली से बेस्ट इज स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. उसके लिए आई नीडेड टू स्कोर 80, 85 ओनली, 80s की लाइन में. एक्चुअली में हो गया. मेंटली गिव अप करने के बाद आपको वो रिजल्ट मिल जाए. I was on cloud 9 that day. I remember calling my friends, texting my friends कि क्या अनरियल सी चीज हो गई है मेरे साथ. उसके बाद मुझे इंटरव्यू कॉल्स आए ऑफ कोर्स.
तो फिर मैंने ही मेरे भाई की शादी से लिटरली एक हफ्ता पहले ये रिजल्ट आया, तो मैं तो शादी तो मैंने इतनी खुशी खुशी निकाली। थैंकफुली शादी के साथ कोई इंटरव्यू की डेट क्लैश नहीं हुई। उसके बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मेरा कैट में स्कोर क्यों नहीं आया और मेरा जैट में स्कोर क्यों आ गया। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। स्ट्रेस फैक्टर प्लेज अ वेरी बिग रोल। मैं कैट के पेपर में इतनी स्ट्रेस थी, इतनी ज्यादा स्ट्रेस थी, कई रात मुझे नींद नहीं आई थी। एंड पेपर में आपको 2+2 भी याद नहीं आता, इतना स्ट्रेस होता है, टाइम प्रेशर होता है। इसलिए आपको पहले मॉक्स की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उस टाइम पर टैकल कर पाओ। कैट का पेपर देने के बाद तो मेरे कंधों से ऐसे बोझ उतर गया कि उसके बाद मुझे किसी पेपर में स्ट्रेस ही नहीं हुआ। मैं हर पेपर में हंसती खेलती गई हूँ, अंदर से ही स्ट्रेस नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे। स्टार्ट तक तो मैं इंडिया में एडमिशन भी ले चुकी थी, मैं बस वो उठा के चली गई पेपर देने बिना कुछ एक्स्ट्रा सोचे। ऑब्वियसली जब मैं वो पेपर के टाइम पे 3 घंटे अपना बेस्ट दूंगी, बट मैंने स्ट्रेस नहीं लिया बिल्कुल। एंड दैट हेल्प अ लॉट बिकॉज बिना स्ट्रेस के मैंने जो दिमाग लगाया वो एक्चुअली में सही लगा। एंड मेरे जैसा बंदा स्कोर कर गया। आई वॉज वेरी बैड एट मैथ्स, इंग्लिश वॉज माई स्ट्रॉन्ग फोर्टे। DILR कभी मैनेज हो जाती थी, कभी नहीं हो पाती थी। एंड डिसीजन मेकिंग का सेक्शन होता है एग्जैक्ट में, वो भी मैंने टैकल कर लिया। आई एम गुड एट लैंग्वेज, तो वो भी मुझसे मैनेज हो गया। बट मैथ्स का मुझे सबसे बड़ा झोल रहता है। एंड आई वॉज एबल टू मैनेज दैट क्योंकि मेरे सर पे स्ट्रेस नहीं था उस टाइम पे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक टेस्ट से इतनी प्रैक्टिस कर लो, आप हैबिचुअल हो जाओ उस एक्सपीरियंस के, ताकि आप स्ट्रेस ना लो एग्जाम टाइम पे। दैट वॉज ऑल अबाउट माई जर्नी। एंड मैं जितना दिल खोल के आपको सब कुछ बता सकती थी मैंने बताया। आई होप मैं कुछ भूल ना गई हूँ। एडिट करते हुए अगर मुझे कुछ याद आया तो बहुत गुस्सा आने वाला है। ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो नो दैट आप दिल से इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज कोई भी बंदा बीच में बंद करके चला जाता। बट अगर आप देख रहे हो तो कुछ तो बात है। एंड अगर आप कंफ्यूज हो, आई रियली होप कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हो, आपको कुछ मोटिवेशन मिली हो। आई डोंट वांट टू गिव माई सेल्फ दैट टैग कि आप मुझसे इंस्पायर हो, मुझसे मोटिवेट हो, बट आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू आउट विद दिस वीडियो। अगर आप थोड़े से भी कॉन्फिडेंस को लेकर डाउटफुल हो ना, तो प्लीज आप ये मान के चलो कि अगर चलानी ने कर लिया तो मैं कर लूंगी। इट इज पॉसिबल फॉर एनीबडी। एकदम ऑनेस्टली बोल रहे, आई कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट, प्रोवाइडेड आपका विजन है वो। अगर आपको नहीं करना फिर भी कर रहे हो, पेरेंटल प्रेशर में आगे कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। नाउ ऑनवर्ड्स आपको बहुत ज्यादा कॉलेज रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कॉलेज लाइफ में एडजस्ट होने में, वहाँ नए फ्रेंड्स बनाने में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक यू थ्रू माई एंटायर जर्नी एज वेल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माई आगे की जर्नी एज वेल। मेरे पास आगे बहुत कुछ होने वाला है इस सबसे रिलेटेड शेयर करने को। आई विल शेयर कॉलेज लाइफ के व्लॉग्स, आई विल शेयर कॉलेज रिलेटेड आउटफिट्स वीडियो, मेकअप वीडियो, सब कुछ। अब आपको हर एस्पेक्ट में कॉलेज रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड मेक श्योर टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप इफ दिस हेल्प्ड यू। लीव अ कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको अभी भी और कोई डाउट मुझसे पूछना है, आप कमेंट से पूछ लो, यार आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप DM पे पूछ लो। I will definitely answer you guys. And that's it from my side now. I'll see you guys next time. Bye bye.